All right. So the learning objectives for today are analysis of accounts हमारा topic है, which is the last topic of Unit 5. All right, that's good to hear. So in profitability देखेंगे हम concept and importance of profitability. All right, liquidity. We'll discuss what liquidity is and what's the importance, how to interpret the financial performance of a business by calculating and analyzing profitability ratios and liquidity ratios. उसमें ये 5 ratios हैं that we will be discussing. So it's only 5 formulas that you need to remember. All right, why and how accounts are used, who uses the accounts and for what purpose. All right, guys. So these are the learning objectives for today. So let's start off with the chapter itself. अच्छा जी, रेशो एनालिसिस, लिक्विडिटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट, ये ब्रॉडर कैटेगरीज में हमने इनके अंडर कुछ रेशियोज को डिस्कस करना होगा. ठीक है. डेटा कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. रिमेंबर वी डिड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं. Are used to make some useful observations about the performance and financial strength of the business. Basically ratios आपको अभी बताते हैं, अभी तो हमने स्टार्ट किया है. Just wait guys, everything will be covered. All right, this is the analysis and to do so ratio analysis is employed. ठीक है जी. So ratio को use करते हैं हम on your data collection. जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया होता है इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, रेशियो से यू डिड्यूस थिंग्स, राइट, कि यार इज दिस बिजनेस परफॉर्मिंग वेल और नॉट, समथिंग लाइक दैट. ठीक है जी. तो जस्ट होल्ड ऑन गाइस, हर चीज़ कवर होगी. All right, so we have 3 ratios basically जो broader category में discuss करने. Profitability ratio tells you what, a measure of how much profit activities generate. ठीक है. As the name suggests, profitability ratios आपको बताएंगे आप कितना profit generate करते हैं using different measures. All right. Liquidity ratios, ability of a business to meet its debts. ठीक है. Liquidity आपको ये स्वयं बताती है कि what's the ability of a business to pay off its short-term obligations, short-term liabilities. Remember what liability is? जो कल का टॉपिक था. Liability is anything that you have to pay back. वालेकुम अस्सलाम. ठीक है जी. So इस केस में liquidity ratios आपको ये बताएंगे how well the business is paying back its short-term obligations. Short-term means less than a year वाली liabilities को कितना अच्छे तरीके से pay back करते हैं. That's what your liquidity tells. ठीक है. And then efficiency ratio is a measure of the performance of the business. Efficiency यही देख रहा होगा कि how efficient is the business in using its assets to generate your profits. ठीक है. So these ratios अब हमने one by one करके ये भी निकालना है. Profitability ratios and profit. What is profit? Remember income minus expenses, or in other words sales minus cost. Sales भी आपकी income होती है and minus all the costs. Profitability ratios में we have to do 3 ratios: gross profit margin, net profit margin. We should know by now कि gross profit क्या होता है and net profit क्या होता है, as discussed in the chapter of income statement, and return on capital employed. तो हम one by one इन सबको dissect करते हैं and let's see. Gross profit margin आपको क्या बताता है? First of all, remember the formula. ठीक है जी. Gross profit divided by sales multiplied by 100. So what does it show basically? It shows the gross profit as a percentage of sales. यानी आपकी sales का कितना percent आपका gross profit है. Remember gross profit कैसे आता है? Sales minus cost of sales. ठीक है. So what's the interpretation? Gross margin ratio, also known as the gross profit margin ratio. It's the same thing. If you see gross margin or gross profit margin, same thing है. Is a profitability ratio that compares the gross margin of a company to its revenue. Revenue किसको कहते हैं? Sales को कहते हैं. Shows how much profit a company makes after paying off its cost of goods sold. Remember what's the equation? Sales minus cost of goods sold, or sales minus cost of sales, equals to gross profit. So it only shows you कि आपने trading से कितना profit कमाया होता है. ठीक है. Ratio indicates the percentage of each dollar of revenue that the company retains as gross profit. For example, now need to learn this example, need to understand this. In fact, आपका gross profit आपने calculate किया margin, it came out to be 20%. What does that mean? देखो, अब for every dollar, every $1 of sale, let's say आपकी $1 की sale पे, I am interpreting this 20%. All right, $1 for every $1 of sale, the company is earning a gross profit of $0.2. ठीक है. सिंपली मैंने क्या किया है? रिमेंबर 20% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या था कि यू आर अर्निंग ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 20% ऑफ योर सेल्स. सो जस्ट एन इंटरप्रिटेशन के देखो
फॉर एवरी $1 ऑफ सेल आप बेसिकली $0.2 का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, है ना भाई। $1 का 20% कितना आता है? $0.2। एंड इसी को अगर हम थोड़ा सा और आसान करते हैं, फॉर एवरी $100 ऑफ सेल्स, नाउ इट्स योर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। फॉर एवरी $100 ऑफ सेल्स आप कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यू गाइस। $100 सेल्स पे आप कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू दिस 20% कॉन्सेप्ट? यस, $20। सो बेसिकली आप अपनी सेल्स का 20% जो है दैट इज बीइंग अर्न एज ग्रॉस प्रॉफिट, विच ऑल्सो मीन्स कि इन दिस केस, ये जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होंगी? 0.8 होंगी। रिमेंबर, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होंगी? 80 होंगी। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट आपको ये बताता है कि आफ्टर पेइंग द कॉस्ट ऑफ सेल्स हाउ मच प्रॉफिट आर यू अर्निंग as a percentage of sales, and that's how you interpret this ratio. Is that understood, guys? If it is, then let's move ahead to the next ratio, ठीक है। That's how you interpret it, ठीक है। अब सिमिलरली आपको फॉर्मूला से भी आपको इंटरप्रिटेशन आ जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज द सेम थिंग, बट ओनली डिफरेंस इज आप ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, यानी सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो इट्स द सेम थिंग, वी आर जस्ट टेलिंग यू कैन व्हाट इज द नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स का कितना परसेंट आपका नेट प्रॉफिट है। तो जब भी मार्जिन का वर्ड आपको नजर आए, इट मींस ही इज आस्किंग फॉर अ रेशियो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मींस ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट मार्जिन मींस नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100, राइट। सो नेट प्रॉफिट क्या होता है? रिमेंबर, when you calculate your gross profit by using the equation sales minus cost of sales, उसके बाद आप सारे expenses को minus करते हैं, gross profit minus expenses equals to net profit. What's the difference between cost of goods sold and expenses? Cost of goods sold और cost of sales में basically difference ये है कि cost of sales entirely वो cost होती हैं जो आपकी sales को करने में लगती हैं, ठीक है, incurred during the process of sales only, ठीक है। इसमें आप सिर्फ उस पे cost निकालेंगे जितना आपने सेल किया है, whereas expenses contain all your other expenses like rent, electricity, heating and lighting, ठीक है, that's the difference. So sales minus cost of sales, देखो अब you need to understand what is this gross profit. The profit earned by trading activity only, यानी आप इनकम भी ट्रेडिंग से कर रहे हैं, which is sales, and expenses on trading which is cost of sales, ठीक है। सो बाकी सारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे, the administration expenses, the advertisement expenses, वो सारे आपके एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है, राइट। बट नेट सेल्स एंड सेल्स में डिफरेंस ये कि देखो, फॉर बिजनेस पर्सपेक्टिव में आप ये सोच रहे हैं, कभी कभी ना आप जब सेल्स करते हैं तो कुछ सेल्स रिटर्न भी हो जाती हैं, तो यू माइनस दैट टू गेट योर नेट सेल्स। इन दिस बिजनेस का चैप्टर्स हमें वी वोंट नीड टू गो इन सच डिटेल, ठीक है जी। आपने बस याद रखना है नेट सेल्स और सेल्स सेम थिंग होगी, ठीक है। ये अकाउंटिंग में होता है कि इफ यू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, लेट्स से, ठीक है, और आपको कुछ गुड्स वापस आ जाते हैं, मे बी दे आर फॉल्टी, मे बी दे आर ब्रोकन, तो वी कॉल देम फिर माइनस सेल्स रिटर्न, एंड देन आप नेट सेल्स पे पहुंचते हैं, ठीक है। सो नेट सेल्स मींस काइंड ऑफ द फाइनल फिगर जो सेल्स का होता है, ठीक है। Alright, guys. Yes, indirectly involved, and therefore we are not included those in your cost of sales का figure. वो हम उसको नीचे ही करते हैं, and that's what I've shown over here. ठीक है? So net profit margin आपको क्या बताता है? Again, interpretation है. Is a financial ratio used to calculate the percentage of profit a company produces from its total revenue, measures the amount of net profit a company obtains per dollar of revenue gained. Remember the formulas? Net profit divided by sales. So basically, let's say अगर 10% आता है, मैंने I calculated my net profit margin, it came out to be 10%. अब इस 10% का मतलब क्या होगा? Just an interpretation. For every $1 of sales, the business is earning a net profit of $0.1, right? है ना भी, मेक सेंस। $1 की सेल पे आपको कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है? टेक आउट 10% ऑफ $1, $0.1, ठीक है। ये या $100 की सेल पे आपको $10 का नेट प्रॉफिट हो, दिस इज व्हाट इट मींस, राइट। अच्छा, ये आपको बताता क्या कि हाउ वेल द कंपनी हैज कंट्रोल्ड इट्स एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्टली आपको ये क्या बता रहा होता है कि देखो, जितने ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे लेट्स से, उतना कम आपका नेट प्रॉफिट आएगा, राइट।
तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी फिर कम आएगा. सो बेसिकली इनडायरेक्टली इट टेल्स यू कि हाउ वेल आर यू कंट्रोलिंग योर एक्सपेंसेस. इफ इट्स अ गुड रेशियो, ठीक है, इफ इट्स अ हेल्दी नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसका मतलब है द बिजनेस इज डूइंग गुड टू कीप इट्स एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल, राइट. अदरवाइज क्या होगा जी? इट्स दी ऑपोजिट. अगर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन कम आता है 2% 3%, इसका मतलब है कि एक्सपेंसेस में मसला है, यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा अंडर कंट्रोल नहीं हो पा रहे, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है. सो इनडायरेक्टली इट बेसिकली टेल्स यू कि हाउ वेल द बिजनेस इज कंट्रोलिंग इट्स एक्सपेंसेस. रिमेंबर इन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको इनडायरेक्टली क्या बता रहा था कि हाउ वेल आर यू कंट्रोलिंग योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, because the equation, which equation, sales minus cost of sales equals to gross profit. तो आपको जितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, इसका मतलब है उतना बेहतर आप कंट्रोल करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को, ठीक है जी. सो सिमिलरली नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए वो बताते हैं एक्सपेंसेस कितने अच्छे कंट्रोल हो रहे हैं. सो गाइस, इज दैट क्लियर? नेट प्रॉफिट मार्जिन क्लियर है, ठीक है. फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट है. All right, and the third profitability ratio is return on capital employed. You start a business to get some return, जिसे हम profit कहते हैं, ठीक है. What's the formula? Operating profit. Operating profit in case of business आपका यही होगा, net profit, ठीक है जी. Operating profit का वैसे मतलब होता है before interest, ठीक है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन फॉर बिजनेस की परस्पेक्टिव हम यही लेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल एम्प्लॉयड? वी डिस्कस दिस इन द चैप्टर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, बैलेंस शीट में. कैपिटल एम्प्लॉयड होती है टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी. टोटल इन्वेस्टमेंट में दो चीजें होती हैं, योर ओन इन्वेस्टमेंट, योर ओन इक्विटी, ठीक है, प्लस योर बोरोड इक्विटी. सो विच वाज व्हाट? नॉन करंट लायबिलिटी. तो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं? योर ओन इन्वेस्टमेंट, योर ओन इक्विटी, जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी ये वो वाली लाइबिलिटीज होंगी जो आप बोरो करके फाइनेंस करते हैं अपने ऑपरेशंस को. दैट्स योर कैपिटल एम्प्लॉयड. सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सी क्या जो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट की है इन द बिजनेस, उस पे मुझे रिटर्न कितना मिलता है, ठीक है जी. लेट्स से यू हैव एन एग्जांपल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 280,000, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1400,000. सो वो कहते हैं व्हाट्स द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आप कितना रिटर्न ले रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे. इट्स 20%. नाउ सी इट्स, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखो बिजनेस आप करते हैं प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है. नाउ आई हैव कैलकुलेटेड माई 20%, ठीक है जी. अब देखो मुझे क्या फ़ायदा होगा उसको कैलकुलेट करने का, इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी कि फॉर एवरी $100 मुझे रिटर्न कितना मिलता है, $100 इन्वेस्टमेंट पे मुझे रिटर्न कितना मिलता है बेसिकली, ठीक है. सो $20 का मुझे रिटर्न मिल जाता है, दैट्स माई प्रॉफिट का फिगर, सही है. दूसरी चीज़ ये है कि आई कैन कंपेयर इट विद अदर बिजनेसेस. या फॉर एग्जाम्पल देखो, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है जी. लेट्स से आई हैव $1,400,000. या तो मैं उसको इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो मुझे 20% का रिटर्न मिल जाएगा, या फिर मैं ये देखूंगा कि यार इतनी ख्वारी करूंगा, बिजनेस चलाऊंगा सारा कुछ. व्हाट इफ आई कीप दिस इन द बैंक सेविंग अकाउंट? लेट्स से जी बैंक मुझे दे रहा है 15%. नाउ विच ऑप्शन इज बेटर? ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज बेटर. तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि यार कौन सा बिजनेस मुझे ज्यादा रिटर्न दे रहा है ऑन माई इन्वेस्टमेंट, एंड देन यू कैन चूज वाइजली कि अच्छा जी आई नीड टू इन्वेस्ट दिस फिगर इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस ए, बिजनेस बी, या बैंक में रखवा दूँ, ठीक है जी. इफ दिस वॉज लेट्स से 5%, ये आंसर अगर 5% होता और बैंक मुझे 10% दे रहा होता, तो वाई एम आई डूइंग गोइंग ओवर ऑल दिस फॉरी एंड स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, जबकि मैं सिंपली बैंक में पैसे रखवा दूं एंड इट विल गिव मी डबल द अमाउंट, ठीक है. तो गेट द सिग्निफिकेंस. रिटर्न आप ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ये बताता है जब आप इन्वेस्ट करेंगे उस पे कितना रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है. सो ऑल राइट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वी हैव डिस्कस दिस. लेट्स सी इसकी जो ऑल राइट इंटरप्रिटेशन, अगेन वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. मेजर्स हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट्स, यानी वो इन्वेस्टमेंट को कितनी एफिशिएंटली यूज करता है टू जनरेट प्रॉफिट. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेट्रिक इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, बिकॉज ये आपको सीधा सीधा आपका रिटर्न बता रहा है, ठीक है जी. आप जो इन्वेस्ट करेंगे उस पर रिटर्न बता रहा है. Yeah, operating profit basically, if you need to calculate the proper formula, it's basically net profit, but you are not subtracting interest from that. So it's a profit before interest को कहते हैं operating profit. But for the sake of business studies, it's going to be equal to your net profit. ठीक है जी. Interpretation of return. Now, return on capital employed shows how much operating income is generated for each dollar of capital invested. अब see इसकी आपको जो है इंटरप्रिटेशन वो भी आ सकती है. फॉर ईच $1 ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी,
फॉर ईच डॉलर वन ऑफ इन्वेस्टमेंट लेट्स से 20% आंसर था। इसका मतलब है अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आपको $0.2 रिटर्न मिलता है। तो दैट्स योर प्रॉफिट का फिगर, ठीक है। दैट्स हाउ यू इंटरप्रेट दिस, राइट। यस 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 रिता, ठीक है। सो हम अभी तक के केस में इट्स गोइंग टू बी द सेम, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट गाइस, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थे। ऑलराइट, now liquidity ratios as discussed above, yeah, below, yeah, before. Liquidity is the ability of the firm to pay off the current liabilities, यानी ये basically ability check करता है आपकी short term liabilities को pay off करने की। How well can you pay off your short term obligations, ठीक है। now उसमें कौन से ratios हैं? current ratio, one is current ratio and the other one is quick ratio or acid test ratio, इसके दो नाम हैं। so now we need to understand the concept, ठीक है। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, ठीक है जी। दिस इज आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। रिमेंबर वर्किंग कैपिटल क्या था? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सिमिलरली इफ यू कैलकुलेट अ रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। व्हाट डज दिस शो? इसका आंसर एक तो आएगा x रेशियो 1 में, वेयर x कैन बी एनीथिंग, ठीक है। X डिनोट्स आपकी करंट एसेट्स और 1 डिनोट्स आपकी करंट लाइबिलिटी। सो बेसिकली ये बताता क्या है? फॉर एवरी $1 ऑफ करंट लाइबिलिटी हाउ मेनी डॉलर ऑफ करंट एसेट्स आर अवेलेबल, ठीक है। ये आपको बता रहा होता है। ऑप्टिमम करंट रेशियो वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री इंडस्ट्री बट अ स्टैंडर्ड आइडियल इज 2:1, यानी एटलीस्ट आपके पास हर लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, यानी हर डॉलर की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए एटलीस्ट $2 की करंट एसेट्स अवेलेबल होने चाहिए, यानी डबल द अमाउंट, ठीक है। ऑल्दो इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बट एक स्टैंडर्ड आइडियल ये है कि यार एटलीस्ट 2:1 होना चाहिए, यानी $1 की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए द बिजनेस शुड हैव एटलीस्ट $2 की करंट एसेट्स अवेलेबल, ठीक है। टू हाई रेशियो, लेट से अभी बात तो यही लगी है ना कि हाई रेशियो बहुत अच्छा होगा, 4:1 इज ऑल्सो वेरी गुड, बट व्हाट अबाउट 20:1? टू हाई रेशियो इज ऑल्सो अनहेल्थी, बिकॉज इसका मतलब ये होगा, नो नॉट ब्रेक इवन, ब्रेक इवन इस कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। देखो टू हाई, लेट्स से 20:1 न्यूमेरिकली बहुत अच्छा लगता है क्या? $1 की करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आई हैव $20 की करंट एसेट्स। दैट माइट सीम फाइन बट दैट्स नॉट फाइन। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर करंट एसेट्स। आपके करंट एसेट बेकार पड़े हुए हैं, यू आर नॉट जनरेटिंग इनकम यूजिंग देम, ठीक है। सो 4:1 इज अ वेरी गुड रेशियो, 5:1 मे बी इट्स अ वेरी गुड रेशियो, बट बहुत ज्यादा हाई होना भी एक अच्छी बात नहीं है। Now the question is 1:1 is break even, नहीं 1:1 is not break even। break even का कॉन्सेप्ट होता है इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट जहां पे जीरो है। यहाँ पे देयर इज नथिंग ऑफ प्रॉफिट, ये आपके बैलेंस शीट वाले फिगर्स है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट। 1:1 का मतलब ये होगा कि यार $1 की लाइबिलिटी जब आप पे ऑफ करेंगे तो यू ओनली हैव $1 की करंट एसेट्स अवेलेबल, यानी आफ्टर पेइंग ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज यू आर लेफ्ट विद नथिंग। इसका ये मतलब हो गया, यानी रिस्की सिचुएशन है, ठीक है। सो दैट्स द इंटरप्रिटेशन। आगे और भी देखते हैं, राइट। इफ दैट्स क्लियर तो फिर एक चीज होती है क्विक रेशियो, आप इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। द फॉर्मूला इज द सेम एक्सेप्ट वन थिंग, रिमेंबर आपके करंट एसेट्स में इन्वेंट्री भी आती है, यानी इफ वी कैलकुलेट आवर करंट रेशियो उसमें आपकी इन्वेंट्री भी होती है, ऑल करंट एसेट्स इसमें सारे होते हैं, ठीक है जी। हाउएवर क्विक रेशियो में आप सारे करंट एसेट्स लेते हैं एक्सेप्ट फॉर योर इन्वेंट्री, यू एक्सक्लूड इन्वेंट्री। व्हाई? देखो इन्वेंट्री टेक्स अप सम टाइम टू गेट सोल्ड ऑफ एंड इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल। आपकी कंट्रोल में तो नहीं कि यार मैं इन्वेंट्री कल बेच दूं, पर ये तो कस्टमर आएगा तो लेगा, ठीक है। सो इन्वेंट्री माइट टेक अप सम टाइम, अ फ्यू मंथ्स, मे बी अ ईयर, ठीक है। तो आप क्विक रेशियो में आप चेक क्या करना चाह रहे हैं? आप क्विक रेशियो में सबसे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चेक करना चाह रहे हैं कि व्हाट इफ द बिजनेस नीड्स टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज नाउ। नाउ का मतलब है इन वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है। उसमें हम इन्वेंट्री को इसलिए एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि इन्वेंट्री को लगता है टाइम बेचने में, ठीक है जी। सो उसको हम साइड पे रख देते हैं और हम कहते हैं जो हमारे पास फॉरेन के फॉरेन अवेलेबल होगा, ठीक है जी। हाउ वेल आर वी इक्विप्ड टू पे ऑफ आवर करंट लाइबिलिटीज देन? सो इस केस में ऑप्टिमम लेवल इज 1:1, यानी अगर मुझे कल अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ेंगी या वेरी शॉर्ट टर्म में, सो एटलीस्ट आई हैव $1 of current assets available to pay off $1 of current liabilities, and that's a good ratio, ठीक है। करंट रेशियो में 1:1 was not suitable,
ठीक है जी, दैट वाज रिस्की। यहाँ पे 1:1 इज सूटेबल, ठीक है। एटलीस्ट अगर कल या परसों मेरी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो हैं, जो मेरे लेंडर्स अगर मुझसे पैसे मांग लेते हैं, तो एटलीस्ट आई कैन पे देम ऑफ इजीली, कुछ तो होगा ना मेरे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1:1 भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? देखो करंट रेशियोज भी यूज कर सकता है, और वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी देखता है, नॉट ओनली रेशियोज, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी देखता है, फ्यूचर कैश फ्लोज भी देखता है, सो मच आपका आइडिया भी देखता है, बिजनेस प्लान भी देखता है। बेसिकली बिजनेस जब आपको लोन दे रहा होता है, तो सॉरी बैंक जब आपको लोन दे रहा होता है, वो ये सोच रहा था कि यार मुझे क्या फायदा होगा, शुड आई इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस और नॉट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट्स देख रहा होता है एग्जैक्टली, राइट। Quick ratio is just to gauge your very short term ability to pay off your current liabilities, ठीक है जी। yes, इसका यूज कम है, however ये एक बेसिकली स्टैंडर्ड बना हुआ है कि यार बिजनेस रिस्की तो नहीं है बहुत ज्यादा कि नहीं, क्या अगर इसको इसका टाइम आ जाता है टू पे ऑफ इट्स करंट लाइबिलिटीज, कैन इट पे दोज और नॉट, ठीक है। बेसिकली क्विक रेशो, इसीलिए नाम क्या इसका, क्विक रेशो। but we leave out our inventory, we do not include our inventory in this ratio, and you know the reason now, क्योंकि inventory को time लगता है बेचने में, and it's not under your control, ठीक है। तो we leave out inventory, हम देखते हैं बाकी current assets कितने available हैं, सही है। so that's the science behind it, okay guys। so now आपका है now you need to calculate two things, current ratio calculate कीजिए पहले, ठीक है, और फिर आप अपना क्विक रेशो कैलकुलेट कीजिए, टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। करंट एसेट्स ये हैं, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री अभी इंक्लूड नहीं, अच्छा की हुई है या नहीं की हुई है, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा आंखें बंद कीजिए, लेट मी सी, हाँ ठीक है, ऑल राइट। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री भी इंक्लूडेड है, बल्कि नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि हाँ दिस इज मच मोर देन दिस, सही है। ऑल राइट, नाउ कैलकुलेट योर करंट रेशो एंड कैलकुलेट योर क्विक रेशो, ठीक है। करंट एसेट्स का जो फिगर है जो पर्पल में नजर आ रहा है, दैट डज नॉट इंक्लूड योर इन्वेंट्री, ठीक है जी। सो टेक 2 मिनट्स मैक्स, जस्ट राइट डन व्हेन डन, फिर हम करते हैं आपके, यू नो द फॉर्मूलाज, वेरी सिंपल फॉर्मूलाज हैं, करंट रेशो का भी और क्विक रेशो का भी। सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दोज एंड, ठीक है, ये आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज। एंड मुर्तजा अलीना आप भी कैलकुलेट कीजिए, थोड़ा सा टेस्ट कीजिए अपने आप को, देन आई विल सॉल्व दिस विद यू। एंड रिमेंबर इसका आंसर रेशोज में आता है, समथिंग रेशो 1, एक्स रेशो 1, where 1 always denotes your liabilities, और जो लेफ्ट साइड पे होगा x always denotes your current assets। डन डन, ऑल राइट, ओके। सो पहले हम देख लेते हैं करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है जी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो सी करंट एसेट्स प्लस योर इन, मैं कहा था इन्वेंट्री इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो जब हम करंट रेशो निकालेंगे, हम इसको ऐड करके निकालेंगे, आपकी जो करंट एसेट्स टोटल है दैट इज 3 मिलियन, ठीक है, 3 मिलियन विद 6 zeros, और करंट लाइबिलिटीज आपकी 900,000। सो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, हाउ मच इज दैट, 3.33:1, यही है 900,000, ठीक है। इफ यू सॉल्व दिस, यानी आपने डिवाइड करना है बेसिकली, तो जो भी कैलकुलेटर पे आंसर आएगा दैट विल बी योर एसेट्स का फिगर, 3.33। So see what is the interpretation then? 3.33 यानी आपको हर डॉलर की करंट लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए यू हैव एटलीस्ट $3.33 के करंट एसेट्स अवेलेबल, विच इज गुड, राइट, विच इज हेल्दी, यानी कंपनी सही जा रही है। अच्छा, क्विक रेशो क्या होगा, क्विक रेशो में यू विल एक्सक्लूड योर इन्वेंट्री, यानी करंट एसेट्स में आप इन्वेंट्री नहीं इंक्लूड करेंगे। सो इट्स बेसिकली व्हाट, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 900,000, इट्स इन माइनस, माइनस में कैसे हो सकता है, अच्छा इसने उल्टा किया हुआ है, सही है, ये लेबल दिस रॉन्ग, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ नहीं फिर इस, या आई गेट योर पॉइंट, ठीक है, दिस इसने उल्टा कर दिया है बेसिकली, बट अकॉर्डिंग टू यू वो करंट रेशो आपका बिल्कुल ठीक था, ये आपके करंट एसेट्स थे 2 मिलियन, वही मैं कहूँगी इन्वेंट्री, हाँ डजंट मेक सेंस, इन्वेंट्री कैसे हो सकती है वो, सही है जी, सही है, हाँ आई गेट योर पॉइंट नाउ, सही है जी। फिर एनीवेज कैलकुलेट कैसे करना है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री
डिवाइडेड बाय योर लाइबिलिटीज इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि देखो करंट एसेट्स हमेशा ज्यादा ही होंगे इन्वेंट्री से, इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है। सो बट आई गेट योर पॉइंट। Acha, so it is also known as asset test or liquidity ratio, measures the ability of business to pay its short-term liabilities by having assets that are readily convertible into cash. And since inventory is not readily available, yeah, readily convertible into cash, therefore we leave that out. Assets are namely cash, securities, receivables, जिनको आप जल्दी से convert कर सकते हैं. Quick assets since they can quickly be converted into cash, and that's the logic behind it. ठीक है. Then final concepts क्या है जी? Inventory is a no. Inventory is a current asset. Inventory is a current asset. ये बात नहीं करें कि नॉन करंट एसेट हो गया. इट इज अ करंट एसेट बट इट कैन नॉट बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश बिकॉज इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल. है ये करंट एसेट. डू नॉट फॉरगेट द लास्ट फ्यू चैप्टर्स गाइस, ठीक है. इन्वेंट्री को आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टर्न इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ठीक है. यू वोंट से कि इसको हमने यूज, देखो नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन क्या थी कि फॉर यूज इन द बिजनेस होंगे एंड नॉट फॉर रीसेल पर्पस, 1 साल से ज्यादा की लाइफ होगी. तो इन्वेंट्री का तो ये चक्कर ही नहीं है, ठीक है. नाउ यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस हेल्प इन एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ट्रेंड्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. परफॉर्मेंस असेस कर सकते हैं आप, कंपैरिजन विद डिफरेंट कंपनीज, कंपैरिजन विद योर ओन कंपनी प्रीवियस ईयर्स के साथ. डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करता है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करता है, बट इट्स ओनली आइडेंटिफिकेशन. एंड कंट्रोल फॉर डिफरेंसेज इन साइज ऑफ स्मॉलर और लार्जर बिजनेसेस. का मतलब ये है कि व्हाट इफ आई नीड टू कंपेयर माय कंपनी विद अ मच लार्जर कंपनी, तो अगर मैं नंबर्स यूज करता हूँ वो फिर इनवैलिड हो जाएगा. बट अगर मैं रेशियोज यूज करता हूँ दैट इसका मतलब यही है कि इट इज कंट्रोलिंग फॉर डिफरेंसेस इन साइज, ठीक है. लिमिटेशंस क्या है? वन रेशियो ऑन इट्स ओन इज ऑफ नो यूज, रिक्वायर्स अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल. फॉर इंस्टेंस इफ आई से यार ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 8% है, गुड और बैड, वी कैन नॉट टेल दिस अनलेस वी कंपेयर इट विद समथिंग. रिलेटिव टर्म्स में बात होती है. Based on past figures, so might not be useful for future. Accuracy and reliability depends on the quality of the data. जितना सही आपका डेटा होगा, क्योंकि देखो उसी डेटा को यूज करके आपने रेशियोज निकालने. अगर आपका डेटा ही गलत है तो फिर आपके रेशियोज भी गलत है. रेशियोज आर ओनली इंडिकेटर्स, नथिंग मोर, यानी कि दे डू नॉट सजेस्ट एनीथिंग, दे कैन ओनली आइडेंटिफाई वीक एरियाज, ठीक है. आपने काम डिसीजंस खुद लेने होते हैं. ऑलराइट. अच्छा, पोटेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स क्रेडिटर्स जो होते हैं, अगेन वो आपकी लिक्विडिटी चेक कर रहे होते हैं कि शुड वी सेल देम ऑन क्रेडिट, कैन दे पे अस बैक और नॉट. इन्वेस्टर्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में इंटरेस्टेड होंगे बिकॉज दे वांट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. मैनेजर्स आपकी परफॉर्मेंस देख रहे होंगे, एम्प्लॉइज आपकी परफॉर्मेंस एंड देयरफॉर वेजेस पे फोकस रखे होंगे. गवर्नमेंट जो होगी वो आपके प्रॉफिट पे देख रही होगी कि हाउ मच टैक्स कैन वी अर्न. एंड ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पोटेंशियल होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग ओनर्स होते हैं, ठीक है. ये है पोटेंशियल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दैट इज इट.